Hello friends, this is Chaya Yadav. Welcome to my channel Chaya Classes. Today I will discuss Indian Council Act 1909. Let's move on to the topic. Indian Council Act 1909, a shadow rather than substance. The reforms of 1909 could afford no answer to the Indian political problem. It was a part of British policy of divide and rule. Means the real purpose of the Morley-Minto reforms was to divide the nationalist ranks and to check the growing unit among Indians by encouraging the growth of Muslim communalism. Let's see background of this act. First, Congress. The Congress would not remain so narrowly confined, and that it was becoming a focus of Indian nationalism because the British government failed to placate the Indians who were much more conscious of their rights by now. Next, partition of Bengal, Swadeshi movement. The Swadeshi movement took a major leap forward. The period saw a breakthrough in Indian art, literature, music, science and industry. All this was not tolerated by the British. Next, the split in the Congress, 26 December 1907 at Surat on the banks of the river Tapti, and Congress was divided in this session. Minto immediately wrote to Morley that the Congress collapse at Surat was a great triumph for us. Next, Gopal Krishna Gokhale appeal. Meanwhile, Gopal Krishna Gokhale went to England and met Mr. Morley, the Secretary of State for India. Then, Viceroy Lord Minto also emphasized the need of making some reforms. Next, Muslim League under the presidency of Aga Khan, demanding a separate electorate of the Muslims. This was conceded to them by Morley-Minto Reform 1909. Finally, the Indian Council Act 1909 was passed in the British Parliament, which is known as Morley-Minto Reforms. Note देखिए, first, Lord Minto was a Viceroy of India. Second, Lord Morley was the then Secretary of State for India. Next, now let's see purpose of the act. The purpose of the Morley-Minto reforms was to divide the nationalist rank and to check the growing unity among Indians by encouraging the growth of Muslim communalism and the enlargement of legislature, both the center and the provinces. Next, now the provision of this act will be discussed. प्रोविज़न ऑफ द एक्ट. फर्स्ट, चार्ट में देखते हैं. एक्सपेंशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल. टू टाइप्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेकेंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. रेज्ड फ्रॉम 16 to 69 members. ऑफिशियल मेंबर्स 37, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स 32, जिसमें इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल 27 and nominated non-official members 5. Elected non-official members इन एरिया से होते थे जनरल इलेक्टोरेट्स, क्लास इलेक्टोरेट्स, स्पेशल इलेक्टोरेट्स एंड मुस्लिम इलेक्टोरेट्स. नेक्स्ट देखिए, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. नंबर ऑफ मेंबर्स इन बिग प्रोविंसेस, मेंबर कितने होते थे? 50. एग्जाम्पल देखिए, मुंबई, बंगाल, मद्रास, उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट, स्मॉल प्रोविंसेस, मेंबर कितने होते हैं? 30. प्रेजेंट टाइम में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स का डिफरेंस स्टेट में देखने को मिलता है. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ द सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन. Like as people elected the members of their local bodies like municipalities and district boards. Then these local bodies in turn elected the members for the provincial legislative councils. Then further choose the members for the Supreme Legislative Council. Thus the election to the Supreme Legislative Council was by a double indirect method and people had no direct contact with these members. Okay, next point देखिए,
सेपरेट एंड स्पेशल इलेक्टोरेट, ये इस एक्ट का खास फीचर है जो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ इस एक्ट के थ्रू। इसके ड्रॉबैक अब मैंने अपने वीडियो 1947 में डिस्कस किया है, जिसका लिंक दिया है ऊपर, आप देख सकते हैं। 27 elected members of the Supreme Legislative Council. First, 6 members of special landlord constituencies. Next, 6 of separate Muslim constituencies. Next, 2 of special electorates like as Presidency Corporation, Chambers of Commerce, Universities and Jamindar. Next, 13 of general electorates. Okay. यहाँ पे देखिए मैंने सेपरेट इलेक्टोरेट को अलग से डिफ़ाइन किया है, इसलिए क्योंकि ये इस एक्ट का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, इसको आपको देखना भी है और समझना भी है। देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट, इट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर अ मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। नेक्स्ट, अंडर द मुस्लिम मेंबर वॉज टू इलेक्टेड ओनली बाई मुस्लिम वोटर्स। ये ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है कि अंडर द मुस्लिम मेंबर्स वॉज टू इलेक्टेड ओनली बाई मुस्लिम वोटर्स। ओके। नेक्स्ट, दस द एक्ट लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म। ठीक है, इससे क्या हुआ, इन्होंने लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म। ठीक है, एंड लॉर्ड मिंटो कम इन टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ये एग्ज़ाम में भी पूछता है, ये ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड मिंटो को किस नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप एंड नैरो फ्रेंचाइजीज। ये चार्ट में देखते हैं। फर्स्ट, क्वालिफिकेशन फॉर द वोटर्स। ओके। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट्स। क्वालिफिकेशन फॉर द वोटर्स में देखते हैं, वोटिंग राइट, only the landlords with specified income or minimum land revenue payment of rupees 10,000 or more. Okay. No voting rights, women, minor under 21 years of age and mental disable. ये भी ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि किस एक्ट में वुमेन वर कंप्लीटली बार्ड फ्रॉम वोटिंग। ओके, तो एक्ट 1909। नेक्स्ट देखिए, क्वालिफिकेशन फॉर दिस कैंडिडेट्स नॉट एलिजिबल। फर्स्ट, अ पर्सन पनिश्ड बाय द कोर्ट ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर मोर देन 6 months, डिबार्ड फ्रॉम लीगल प्रैक्टिस, डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द काउंसिल्स। फंक्शंस ऑफ द काउंसिल्स वर enlarged in 3 aspects. First, discussion of the annual financial budget. Next, discussion of any matter of general public interest. Next, asking of questions. ये इम्पॉर्टेंट फीचर है, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि 1892 में ये राइट्स नहीं थे और इस एक्ट में इन्हीं राइट्स को जो है वो बढ़ाया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से वो राइट्स हैं। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नोट देखिए, ये भी ध्यान रखिएगा कि नॉट टू बी अलाउड टू डिस्कस पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अफेयर्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि क्या चीज़ें जो हैं वो अलाउड नहीं थी डिस्कशन के लिए, तो पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अफेयर्स। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट टाइम द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियंस इन काउंसिल्स। 2 काउंसिल्स, फर्स्ट इंडियन काउंसिल इन इंग्लैंड, सेकेंड गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन इंडिया। ओके, तो इंडियन काउंसिल इन इंग्लैंड में देखिए 2 इंडियंस अपॉइंटेड, केसी गुप्ता, सैयद हुसैन बिलगामी। ओके, यहाँ गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव में देखिए अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, द एडवोकेट जनरल ऑफ बंगाल। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फर्स्ट टाइम किस इंडियन को एज अ लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया था, तो वो कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ओके, नाउ लेट्स नेक्स्ट पॉइंट, critical analysis of the act. Gandhiji said, Morley-Minto reform destroyed us because the Morley-Minto reforms of 1909 could not come up to the expectation of the Indians.
Next, the reforms of 1909 afforded no answer to the Indian political problem. Next, the real political solution was lying in complete self-rule and accountable governance, but the 1909 Act was only a face-saving device. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नैरो फ्रेंचाइजीज, इनडायरेक्ट इलेक्शंस. Next, the act rather added new political problem with the introduction of the separate electorate system and legalized communalism. ठीक है, यहाँ कम्युनलिज्म को क्या कर दिया गया, लीगलाइज कर दिया गया, तो ये ध्यान रखिएगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, in nutshell, it can be said that 1909 Act was the shadow rather than substance. This was the purpose and important provision of this act. नेक्स्ट, सी माइंड मैप. आप एक नज़र में इस एक्ट के सभी इंपॉर्टेंट फीचर को देख सकते हैं. इंडियन एक्ट 1909. फर्स्ट, इनलार्जमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. सेकेंड, सेपरेट इलेक्टोरेट एंड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन. नेक्स्ट देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ द इनडायरेक्ट इलेक्शन. नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियंस. नेक्स्ट देखिए, क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स एंड कैंडिडेट्स. उसके आगे देखिए, एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन ऑफ काउंसिल्स. ओके, लास्ट देखिए, मेंबर्स आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस एंड डिस्कशन ऑफ द एनुअल बजट. तो ये माइंड मैप के थ्रू ये इंपॉर्टेंट फीचर्स था इस एक्ट का. नेक्स्ट, इस एक्ट से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं. प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट लॉ मेंबर टू बी अपॉइंटेड टू द एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नर जनरल. लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एस्टैब्लिशिंग इन इंडिया. डिस्कस. ऊपर दिए गए प्रैक्टिस क्वेश्चन के ये आंसर्स हैं, आप इन्हें सॉल्व कीजिएगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्ट वेल. इसके अलावा कोई क्वेरी या सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं. अगर आप चाहते हैं कि नए वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिले तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें प्लीज़. थैंक यू.